बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to the online classes of Noor School and College, Mansehra. My name is Ishtiyaq Ahmed, lecturer in English. Dear students, as you know very well that in the previous video we have completed the unit number 4, that was poem The Daffodils. Today we are going to discuss its exercise. So for that purpose, first of all, open your books from page number 35. And the first thing in exercise is glossary, words, their English meanings. Take a pen or pencil in your hand. You'll have to write few things which I'll tell you on your books. So the first word is wandered. Its English meaning is to walk slowly around or to a place, often without any particular sense of purpose or direction. यानी कि घूमना. Next word is wells. Wells means valleys, वादियाँ. Next word is host. Great number or groups, लश्कर. Fluttering, to move lightly and quickly, to make something move in this way, lehrana. Stretched, to make something longer, wider or looser, for example by pulling it to become longer, etc. in this way, phela hua. Margin, a number of people or things in a more or less straight line, kinara. Sprightly, full of life and energy, यानी कि खुशी. Gay, light-hearted and carefree, happy and cheerful, खुश या मसरूर. Jocund, cheerful and light-hearted, खुशतवा. Gazed, to look steadily at somebody or something for a long time, either because you are very interested or surprised or because you are thinking of something else, यानी कि जमे रहना या निगाह डालना. Next word is coach, a long comfortable seat for 2 or more people to sit on, यानी कि बिस्तर. Pensive, thinking deeply about something especially because you are sad or worried, फिक्रमंद. Vacant, empty or not being used, खाली. Bay, a part of the sea or of a large lake, partially surrounded by a wide curve of the land, Halij. Solitude, the state of being alone, especially when you find this pleasant, Tanhai. Tossing, to move or make somebody or something move from side to side or up and down, हिलाना या फेंकना. These were the glossary words. इनको एक दफ़ा प्रोनाउंस आपके सामने तब किया कि इनके उर्दू मीनिंग भी आप अपनी बुक पर लिख लें, और इसके अलावा इन वर्ड्स में से अगर किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको प्रोनाउंस करना भी आपको आ जाए. तो आई होप सो कि ग्लॉसरी आपको क्लियर हो गई होगी. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, कॉम्प्रिहेंशन. Read out the text and answer the following questions. And the first question is there any personification in this poem? If yes, where? क्या इस पोएम में कहीं पर कोई पर्सनिफिकेशन मौजूद है? अगर है तो कहाँ पर है? अब ये चीज़ें मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर भी आपको क्लियर की थी और अभी भी क्लियर करता हूँ. फॉर दैट पर्पज़ वील ओपन आवर नोट्स. सो रेफरेंस. This question has been taken from the lesson The Daffodils, which has been written by William Wordsworth Longfellow. रेफरेंस हमारे पास वही बात है, पिछले चैप्टर्स में भी आपको समझाया है कि सेम होगा, क्योंकि हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, जबकि जब आप पेपर्स में लिखेंगे तो रेफरेंस हर क्वेश्चन का सेपरेट होगा. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चैप्टर शू मेकर, फंटास्टिक शू मेकर में से कोई क्वेश्चन है तो उसका रेफरेंस होगा उस चैप्टर का नाम. डैफोडिल्स में से तो डैफोडिल्स होगा. आगे जी, डेफिनीशन ऑफ पर्सनिफिकेशन. पर्सनिफिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन विच समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन इज़ गिविंग ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स. कि ये हमारे पास एक पोइटिक डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ऐसी चीज़ को इंसानी खसूसियात देते हैं जो कि इंसान नहीं होता. इंसानी खसूसियात यानी कि किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना. एग्जाम्पल, द सन प्लेज हाइड एंड सीक विद द शेडोज़ एंड द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड. अब ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जो हमने एक्सरसाइज से पहले भी ड्यूरिंग द लेक्चर भी डिस्कस की थी. ठीक है, कि सूरज
साए के साथ आंख मचोली खेलता है। अब सूरज तो आंख मचोली खेलने से रहा, क्योंकि आंख मचोली खेलना तो इंसानों का काम है, लेकिन ये क्या हमने यहाँ पर यूज़ किए, पर्सनिफिकेशन। ठीक है, अब बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है, येस द पोइट हैज़ यूज्ड पर्सनिफिकेशन इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So, fluttering and dancing are the qualities or attributes of human, or the characteristics of human, but here they are giving it to some flowers. Next, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance, the waves beside them dance. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास वही बात होगी कि उन्होंने ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जो हैं, ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो क्या कर दी हैं, नॉन ह्यूमन थिंग्स को दे दी हैं। राइट एट लीस्ट 2 लाइन्स शोइंग सिमिलीज। रेफरेंस अगेन सैम डैफोडिल्स एंड द पोइट इज विलियम वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। एंड डेफिनीशन ऑफ सिमिली, in a simile one thing is compared to another of a different kind. Words like as or like are used in a simile, जिसमें किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा दूसरी मुख्तलिफ चीज़ के साथ क्या किया जाए, मवाजना किया जाए, कंपेयर किया जाए। और इसमें वर्ड एज या लाइक इस्तेमाल होते हैं, जबकि दूसरा जो मेटाफर होता है उसमें हमारे पास एज या लाइक इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि डायरेक्ट दूसरी चीज़ का कह दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सिमिली और एज अंडर, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, एज वर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, तो ये दोनों हमारे पास क्या हैं, सिमिली है। अब सिमिली के बारे में मज़ीद डिटेल में क्लियर होगा आपको, यकीन है मुझे, क्योंकि जिस वक्त पोएम पढ़ा रहा था तो तब मैंने आपको ये चीज़ें डीपली बताई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज़ द वर्ड क्राउड एग्जैक्टली मीन? मीनिंग ऑफ द वर्ड क्राउड, द वर्ड क्राउड एग्जैक्टली मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड इन द ओपन, यानी कि क्राउड हजूम का एग्जैक्टली हमारे पास मतलब ये बनता है कि लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम का इकट्ठा हो जाना किसी ओपन जगह पर। But in the poem, the poet has used the word crowd, showing the large number or quantity of daffodils. लेकिन यहाँ पर पोएम में जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया वर्ड क्राउड, इसका मतलब हमारे पास क्या है, डैफोडिल्स, आबी नरगिस का एक बहुत बड़ा हजूम, यानी कि फूलों के लिए इस्तेमाल किया है। Why does the poet compare himself to a cloud? कि शायर ने अपने आप को एक क्लाउड, बादल के साथ क्यों क्या किया है, मवाजना किया है। तो आंसर क्या है, कंपैरिजन ऑफ क्लाउड हेडिंग, द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ क्लाउड बिकॉज क्लाउड फ्लोट्स ऑन हाई हिल्स एंड वैलीज, लोनली। ठीक है, ये लवली वर्ड नहीं है बल्कि लोनली है, कि जो हमारे पास एक बादल होता है वो बोल रहा है कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों और वादियों में अकेला क्या करता है, तैरता है। एंड द पोइट इज़ आल्सो वॉकिंग एंड विजिटिंग वैलीज़, जबकि शायर जो है वो भी चल रहा है और मुख्तलिफ वादियों में घूम फिर रहा है, अलोन टू एन्जॉय ब्यूटीफुल सीन्स, और अकेले ही मुख्तलिफ खूबसूरत सीनरियों को, मनाजिर को एंजॉय करने के लिए तन्हा घूम रहा है। इस वजह से उसने अपने आप को कंपेयर किया है क्लाउड के साथ। राइट डाउन द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, कि पोएम का मेन आइडिया बताएं क्या है। रेफरेंस अगेन सेम, मेन आइडिया, नेचर इज़ अ सोर्स ऑफ प्लेयर इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, कि इस पोएम नज़म का जो मरकज़ी ख्याल है वो क्या है, कायनात, जो कि खुशी का ज़रिया है। द पोएट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ द डैफोडिल्स, कि शायर जो है वो आबिया नरगिस की खूबसूरती की तारीफ़ करता है। एंड फील्स कम्फर्ट एंड प्लेयर इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स, और वो डैफोडिल्स आबिया नरगिस की कंपनी में उनके हमरा होकर बहुत ज़्यादा इत्मीनान और ख़ुशी महसूस करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज़, डू यू लाइक दिस पोएम, वाई, कि क्या ये पोएम आपको पसंद है, क्यों? तो रेफरेंस हमारे पास अगेन सेम होगा, वही है डैफोडिल्स एंड रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। अब लाइकिंग ऑफ द पोएम क्या है, लाइकनेस ऑफ द पोएम, आई लाइक दिस पोएम वेरी मच, बहुत ज़्यादा मैं इस पोएम को, नज़म को पसंद करता हूँ। बिकॉज इट डिपेक्ट्स नेचुरल ब्यूटी थ्रू द यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, कि ये हमारे पास क्या करता है, कुदरती खूबसूरत मनाजिर को, नेचुरल ब्यूटी जो फितरी हुसन होता है उसकी मंजर कशी करता है, उनको बयान करता है फिगरेटिव लैंग्वेज के ज़रिए। लाइक द पोइट द पोएम गिव्स मी वेरी प्लेयर एंड कम्फर्ट एंड इंस्पायर्स मी टू विजिट प्लेसेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, कि जिस तरह शायर जो है वो इस पोएम में बयान कर रहा है कि मैं आबिया नरगिस को या डैफोडिल्स को देखकर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, खुशी महसूस करता हूँ और इत्मीनान। तो इसी तरह मुझे भी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है,
मैं भी ऐसी खूबसूरती से इंस्पायर होता हूँ और फिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं ऐसे खूबसूरत कुदरती मनाजिर वाली जगह पे जाऊँ। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, हेयर आई रेफर्स टू डैश, कि मैं अकेले बादल की तरह घूमता रहा। अब यहाँ पर जो वर्ड उन्होंने आई इस्तेमाल किया है, ये किसकी तरफ इशारा है? कौन बोल रहा है कि मैं बादलों की तरह अकेला घूमता रहा? तो रीडर, क्लाउड्स, पोइट या डैफोडिल्स? तो ऑब्वियसली कौन बोल रहा है? पोइट। सेकंड, दे स्ट्रेच्ड a never ending line along the margin of a bay, here they refers to dash, कि वो एक ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। तो कौन? दे का मतलब क्या है? क्लाउड्स बादल, डैफोडिल्स आबी नरगिस, हिल्स पहाड़ियाँ या स्टार्स सितारे? तो पोइम डैफोडिल्स के बारे में है, तो ऑब्वियसली द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट द डैफोडिल्स। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच जोकंड कंपनी, कि इतनी अच्छी कंपनी जो है उसमें रहकर एक शायर खुश होने के अलावा क्या कर सकता है? अब यहाँ पर जोकंड कंपनी किसकी तरफ इशारा कर रही है? ठीक है, किसकी खूबसूरत कंपनी, साथी जो हों उसके। फ्रेंड्स ऑफ द पोइट, शायर के दोस्त, डैफोडिल्स, क्लाउड्स या स्टार्स? तो ऑब्वियसली द करेक्ट ऑप्शन इज डैफोडिल्स। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट स्टेंजा व्हाट वाज द पोइट डूइंग, कि पहले स्टेंजा में शायर क्या कर रहा था? वॉकिंग एमलेसली, बगैर किसी वजह के घूम फिर रहा था। राइटिंग अ पोएम, एक नज़म लिख रहा था। लुकिंग एट द क्लाउड्स, बादलों की तरफ देख रहा था। या लुकिंग एट द स्टार्स, सितारों की तरफ देख रहा था। तो ऑब्वियसली द पोइट वॉज वॉकिंग एमलेसली, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, वॉकिंग एमलेसली। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, what wealth the show to me had brought, by wealth the poet means dash, के व्हाट वेल्थ, के कितनी दौलत, द शो टू मी हैड ब्रॉड, के ये मंजर मेरे लिए कितनी ज़्यादा खुशी लेकर आया है, कितनी दौलत ले आया है। वैसे वेल्थ का मतलब दौलत होता है, लेकिन यहाँ पर पोएम में वेल्थ का मतलब क्या है? कंपनी है, गोल्ड है, प्लेयर है या मनी है? वैसे तो वेल्थ मनी को बोलते हैं, लेकिन इस पोएम में क्या है? प्लेयर, खुशी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी पे टिक करें। आगे बढ़ते हैं जी। वोकेबलरी आ गया। डेड्यूस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कन्फर्म योर मीनिंग्स फ्रॉम द डिक्शनरी, कि बोल रहा है कि आपने वर्ड्स को क्या करना है? डिक्शनरी में सर्च करना है और फिर इनके इंग्लिश मीनिंग्स आपने लिखने हैं बुक पर ही। तो ऑलरेडी मैंने ये सर्च किए हुए थे, तो आप लोग फर्स्ट पहले ख़ुद भी साथ में ज़रा सर्च कर लेने हैं। ठीक है, ऑफ्ट से मुराद हमारे पास है ऑफन, एंड इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट वर्ड इज़ नेवर एंडिंग, एंड इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ लिमिटलेस। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्ली, ग्ली मीन्स प्लेयर। Then the word is bliss, bliss means blessing. Next word is twinkle, and its English meaning is shine, sparkling, glistening. And stretch यानी कि spread. Question number B, can you tell which lines of the poem indicate? अब क्या indicate करती हैं? Comparison of daffodils with stars. तो ये हमारे पास आप लोगों को पोइम में देख लीजिएगा कि स्टेंजा नंबर 2 की जो लाइन नंबर 1 है उसमें डैफोडिल्स का स्टार्स के साथ क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, स्पीकर्स सॉलिटेरीनेस टू दैट ऑफ द क्लाउड, स्टेंजा 1 की पहली लाइन है। ठीक है, आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड, सॉलिट्यूड भी हमारे पास क्या होता है? तन्हाई को बोलते हैं, हलवत को। कंपैरिजन ऑफ डैफोडिल्स टू अ क्राउड ऑफ द पीपल, एंड दैट इज स्टेंजा नंबर 1 लाइन नंबर 3। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ डैफोडिल्स टू डांसिंग ह्यूमंस, स्टेंजा नंबर 1 में लाइन नंबर 6 जो है उसमें ये बात बयान की गई है। ठीक है, तो ये आप बुक पर ही अपना सारा लिखेंगे। सी पे बढ़ते हैं जी। विच वर्ड ऑफ द पोएम मीन्स द सेम एज, ठीक है, कि पोएम में हमारे पास जो वर्ड्स इस्तेमाल किए उनमें से किसका मतलब ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसा बन रहा है? नंबर ऑफ डैफोडिल्स तो होस्ट, ग्लैंस ग्लिम्प्स, हैप्पी फीलिंग ग्ली, डीप थॉट पेंसिव मूड, ब्लेसिंग ब्लिस, यानी कि वहाँ पर ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड जो लिखा हुआ है तो ब्लेसिंग का मतलब भी वही है और ब्लेसिंग से ब्लिस। ठीक है, इसी तरह डीप थॉट तो पेंसिव मूड, तो ये भी आपने अपनी बुक्स पर क्या करना है? लिखना है। आगे हम लोग जिस वक्त बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है राइटिंग, और राइटिंग में क्या है? व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग? पैराफ्रेजिंग इज री राइटिंग द पोएट्स वर्ड्स और आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स without altering the meaning. A stanza takes the shape of a prose. It is about the same length as the original because the purpose is to rephrase without leaving out any important point. कि पैराफ्रेज हमारे पास क्या होता है? वैसे जो पोइम लिखी हुई होती है वो होती है शायरी में, पोइट्री में, उसे कन्वर्ट कर लेना किस में? प्रोज में। तो फिर ये बता रहा है कि इनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है, क्योंकि ये लिखने का मकसद हमारे पास यही होता है कि पोइट्री को हम प्रोज में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और लेंथ इसकी उतनी ही होती है, सेम होती है, क्योंकि जो हमारा मकसद होता है वो लिखने का सिर्फ ये है कि उन
किसी भी मेन आइडिया को हम स्किप नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी मेन पॉइंट को स्किप नहीं करेंगे। और अब इनकी ही पैराफ्रेजिंग हमारे पास जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, अब इनमें हमारे पास यूनिट नंबर 4 के जो द डैफोडिल्स है इसके कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस भी आपके पास हर स्टेंजा के लिखे हुए हैं और पैराफ्रेज भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर होमवर्क। योर होमवर्क इज़ टू राइट दीज कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, all of these 6 questions on your assignment pages as well as on your नीट copies। यानी आपकी जो नीट copies हैं उन पे भी आप इन क्वेश्चंस को भी लिखेंगे, ठीक है, जिस वक्त आपको अब नोट्स 3 से 5 में प्रोवाइड किए जाएंगे डेट से, तो उनके आप लोग ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको असाइनमेंट पेजेस पर भी लिखेंगे नीट एंड क्लीन, साथ में याद भी करने हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास नोट्स में पैराफ्रेज और कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस मौजूद हैं वो भी लिखने होंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो अभी तक जो हमने पढ़े हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।